But let's start on page number 66, sum number 4. Kaushik Corporation has purchased a machine for 1,24,000 on 1/4/2012. The carriage and the installation expenses are 16,000. Then machine में देखो कुछ repairing का भी expense आ रहा है for putting it before the use. On 1/10/2013, underline the date. 1/10/2013 हमने second hand एक machine buy करी. Second machine कितने में? 1,36,000 और installation का खर्चा कितना आया? And then underline करो. First machine को मैंने sell कर दिया. What's the date? 39/2014 at 40% loss on the book value. हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है up to 31/3/2015. Show the accounting effect, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन खाली पहले साल का, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. एंड कंपनी प्रोवाइड कर रही है 10% डेप्रिसिएशन बाय व्हिच मेथड? बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट क्लू इन एसएलएम? क्या करते थे हम कि भाई जो भी रेट दिया है दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन बेटा मेरे साथ साथ वर्किंग भी स्टार्ट करो, लिखना भी स्टार्ट करो. चलो फर्स्ट वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेट, particulars, machine 1 and machine 2. Date, particulars, machine 1 and machine 2. But are there 2 machines? Okay. So better tell me the first date. On which date I bought my first machine? 1/4/2012. So better working में लिखना शुरू करेंगे मेरे साथ. 1/4/2012 I bought my first machine. But what was the cost price of that? 1,24,000. But can I say there were some installation expenses? But how much installation expenses we paid? 16,000. There were some repairing expenses also done. मशीन को यूज करने पहले, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे. That comes to 20,000. So मेरा टोटल कॉस्ट अगर तुम देखोगे तो इट कम्स टू 1,60,000. My total cost comes to 1,60,000. Now beta pay attention. My this year started with 1/4/2012. खत्म कब होगा? 31/3/2013. It started with what date? 1/4/2012. खत्म कब होगा? 31/3. क्या से ये दो डेट के बीच में कुछ इवेंट हो रही है? कोई मशीन लिया, कोई मशीन बेचा? नो? पक्का? तो सीधा डेप्रिसिएशन लिख देंगे हम. लिखो चलो 31/3/2013 वापस हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे एट 10% बाय एसएलएम. અને બેટા એસએલએમ પર એટલે કોસ્ટ પ્રાઇસ પર 10% લેવાના. So that comes to 16,000. So 1,44,000 क्या आएगा अपना बैलेंस? And that's the balance is in the starting of the second year, 1/4/2013. This would be my balance in the starting of the year 1/4/2013. Now beta again pay attention. 1/4/2013 से लेके अपना साल खत्म कब होगा?
31/3/2000, 31/3/2000. But in between of these two dates, is there any event? Is there any event? What's the event? Can I say I have bought the second machine? I have bought the. Tell me the date. 1/10/2013. So यहाँ पर बेटा डेट लिखेंगे 1/10/2013. बेटा what's the cost price of the second machine bought? 1,36,000. And is there any installation expenses? 8,000. So वापस कितना आ रहा है? 1,44,000. सेकेंड मशीन की भी अमाउंट आ रही है 1,44,000. कोई डाउट? कोई डाउट? बेटा यहां ध्यान, यहां ध्यान. हमने 1/4/2013 को ये मशीन 1 का बैलेंस लिखा, फिर ये दूसरी मशीन कब बाय करी? 1/10/2000. Is there any other event in between 1/4 से लेके 31/3 तक? कोई और इवेंट है? So अब 31/3 को क्या देना पड़ेगा? 31/3 को क्या देना पड़ेगा? So 31/3/14 हम क्या प्रोवाइड करेंगे? Depreciation 10% again by SLM. Depreciation at 10% again by SLM. And here is the most important thing which we have learned it, but we are revising it again. अपने साथ मशीन 1 अप्रैल से है, मशीन 1 अपने साथ कब से है? तो ये मशीन 1 पर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? बेटा डेप्रिसिएशन कितना आएगा? पूरे 12 महीने का. सो मशीन 1, लेकिन 10% किसका लगाऊं? मेरे. सो 1,60,000 का 10%. सो मशीन 1 पर कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 16,000. जो कॉस्ट प्राइस है उसका 10%. लेकिन मशीन 2 देखो हमने कब बाय करी है? 1/10/2000, 1/10/2000, and now my year is ending on 31st March. So if I bought it from 1st of October, तो डेप्रिसिएशन भी कब से लगेगा? 1st of October. So कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. How many months? 3. So बेटा वापस मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा? मशीन 2 के लिए व्हाट्स द कॉस्ट प्राइस? 1,44,000, उसका 10%, बट फॉर हाउ मेनी मंथ्स? तो 7,200 मशीन 2 का डेप्रिसिएशन आया. बेटा माइनस करो 144 में से 16, 1,28,000, 136,800. ये अपना क्या आया? बैलेंस, जो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग का हम लिख देंगे. ये जो आया दैट्स माय थर्ड ईयर का स्टार्टिंग का बैलेंस. ठीक है, ठीक है. Now बड़ा most eventful year. Now is the most eventful year. जरा ध्यान. 1/4/2014 से ये मेरा ईयर शुरू होता है. खत्म कब होगा? खत्म कब होगा? 31/3/2000, 31/3/2000. अब ये दो डेट के बीच में कुछ इवेंट हो रही है. कुछ इवेंट हो रही है. कौन सी डेट पे इवेंट हो रही है? 30 सितंबर को कुछ इवेंट हो रही है कि हमने अपना पहला मशीन लॉस करके बेच दिया. देखो ऐसा लिखा है. हमने अपना पहला मशीन कैसे बेच दिया? लॉस करके बेच दिया. लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है जिसका जवाब दो. क्वेश्चन है, क्या हमने 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक क्या हमने पहली मशीन को यूज करा है? कि वो ऐसी थी? यूज किया है.
तो कहना से बेचने के पहले हमने ये मशीन को 6 महीने यूज करा है। देखो, पहली अप्रैल, सो अप्रैल मार्च, सारा कैलेंडर रिवर्स जा रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सो बेचने से पहले हमने उसको 6 मंथ्स यूज किया। तो अगर 6 मंथ्स यूज किया है तो हमें इस पे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? I need to calculate depreciation for 6 months. I need to calculate depreciation for 6 months. And then I will sell it off. यहाँ जरा ध्यान देना। ओए, ये 1/10 को परचेस किया तो हमने 1/10 से 31 मार्च खाली 6 महीने का डेप्रिसिएशन लिया। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से लेके 30 सितंबर तक यूज किया, इसलिए हमने 6 महीने का किसमें डेप्रिसिएशन हम लेंगे? सो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1 फॉर 6 मंथ्स। तो बेटा उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 1,60,000 એના 10% 6 મહિના માટે એટલે 8,000 આવશે અને એ અગર હું માઈનસ કરું તો 1,20,000 હમણાં એની વેલ્યુ છે 1,20,000 is the value. Yes. I sold it at profit or loss? Loss. Sold it at profit or loss? Loss. How much loss? 40%. So less loss at 40%. So बेटा 1,20,000 का 40% निकालो। 48,000 माइनस हो जाएगा। कहना से 72 में बेटा मैंने इसको बेच दिया और बैंक में इतने पैसे आ गए मेरे। 40% loss comes to 48,000 and then I sold it for 72,000. But is my working over? No, working is not over. Why? बेटा यहाँ जरा ध्यान दो। मैं अभी 39/2014 पर हूँ। मेरा ये साल शुरू हुआ 1/4/14 से, खत्म कब होगा? सो मुझे 31/3/2015 तक जाना पड़ेगा ना। अब सर इस डेट पे जाके करूँ क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, करूँ क्या? किस पे डेप्रिसिएशन दूं? हाँ, मशीन 1 गेला पण 2 तो हेला है। Machine 1 I sold on 39, but machine 2 is still there with me, and the machine 2 is there with me from the very first day. So मुझे डेप्रिसिएशन कितना है? पूरे 12 महीने का। So depreciation on machine 2 for 12 months. ये बड़ा की पॉइंट है। हम यहाँ पर मशीन बेच के बस खुश हो जाएंगे, चलो हो गया, ऐसा नहीं है बेटा। मशीन 2 का कॉस्ट प्राइस जरा देखो कितना है? 1,44,000। उसके 10% એટલે 14,400। सो 136,800 में से 14,400 माइनस करो। 122,400। ये है मेरा बैलेंस 122,400। But that completes the working. What's the doubt? But this completes the working. What's the doubt? But what was the new point today we saw? New point. We have earlier seen this machine bought in between here. But in this sum was what? Machine even bought and even sold. ठीक है। अब उन्होंने हमें सीधा मशीनरी अकाउंट बनाने के बोला है, जर्नल एंट्री बोली। तो मशीनरी अकाउंट बनाने का अपने ने क्या रूल समझा है? क्या लिखने का? डेबिट बाजू बी અને बी, परचेस અને બાકી બધું ચાલુ કરીએ જોડે। કે તમને ટ્રાય કરવું છે? સર વર્કિંગ કેવી રીતે કરી? જોડે। તમે કરતા ગયા, હું લખતો ગયો, એવી રીતે જોડે। बेटा आधे लोग जो अभी खड़े हैं, जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, चैप्टर नहीं आएगा तुम लोगों को, क्योंकि चैप्टर के अब खाली 3 सम बाकी हैं और वर्किंग के अभी भी फाफड़े हैं अपने।
बोर्ड पर से देख देख कई वर्किंग होती है सर हमसे, मजा ही कुछ अलग है ऐसा करने का, क्योंकि घर पे सर टाइम नहीं मिलता है सब वर्किंग करने का, कुछ और वर्किंग चलती रहती है घर पे। शुरुआत बड़ा मशीनरी काम शुरू करूं। बड़ा वर्किंग में किसी को कोई डाउट? वर्किंग में किसी को भी कोई डाउट है? But let's see the first date in the working 1/4/2012. But what have we done on that day? We have bought the first machine. Raise your hand. What's the entry? Prithvi. Machine account to bank to cash. Machine account debit to bank to cash. मतलब मशीनरी अकाउंट में ये कहाँ लिखूंगा मैं? Debit side to bank to cash. 1,24,000 हम बैंक में लिखेंगे और 36,000 हम कैश में लिखेंगे। 1,24,000 और ये 16 और रिपेयरिंग वो सब हम कैश में लिख देंगे। डू गेट दैट? उसके बाद बेटा जरा वर्किंग में देखो, विच इज द नेक्स्ट डेट? 31/3 को हमने 16,000 का ये डेप्रिसिएशन लिया। एंट्री बताओ ध्रुव भाई। अरे it will be depreciation account debit to it will be depreciation account debit to तो मशीन में कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। सर હવે એન્ટ્રી વગર હું તો લેક્ચર બનાવી દઉં છું, એ જ વસ્તુ યાદ રાખવાનું તમને કીધું એટલે સેટ છે મગજમાં, બાકી બધું પહેલી બાજુમાં આંખો બંધ કરીને મેલો। By depreciation, how much is the amount? 16,000। एंड कहना से अपना पहला साल खत्म। अब बेटा जैसे ही पहला साल खत्म होता है, what we are supposed to do? अच्छा, जब भी बैलेंसिंग करते हैं ना, तब ये हमेशा याद रखना, मशीन का डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा आएगा हमेशा। अरे डेबिट साइड तो टोटल से 1,60,000, सेम टोटल हम यहाँ लिख देंगे, उसमें से 16 गया है, so 1,44,000। So this is my balance carried down 1,44,000। और बेटा ये बैलेंस हम कहाँ लिख देंगे? 1,4,2 बैलेंस brought down 1,44,000 to balance brought down 1,44,000। बेटा हम ये डेट पे हैं 1/4/2013, हम ये डेट पे हैं, बैलेंस 1,44,000 है, पता चल रहा है? अब उसके बाद जरा इवेंट देखो, 1/4/2013 के बाद नेक्स्ट इवेंट कौन सी डेट पे है? 1/10/13 को क्या करा? मशीन परचेज करा है, परचेज। तो मशीनरी अकाउंट में कहां? मशीनरी में कहां? डेबिट में। वापस लिखो क्या? टू बैंक अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। बड़ा बैंक में जाएगा 1,36,000, कैश में जाएगा 8,000। बेटा 1/10 के बाद सीधा वर्किंग, 1/10 के बाद सीधा वर्किंग। 31/3 पे क्या आ रहा है? 31/3 पे क्या आ रहा है? बेटा कितना डेप्रिसिएशन है देखो जरा, 16,000 प्लस 7,200, 16,000 प्लस 7,200 कितना है टोटल? 23,200। मशीन 1 मशीन 2 दोनों का लेना पड़े ना। सो डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में कहां लिखो? अब मैं
Credit side 31,314. By depreciation 16,000 and 7,200. So 23,200. 16,000 plus 7,200, that comes to 23,200. अरे बेटा क्या अपना दूसरा साल खत्म होला? तो बेटा बैलेंसिंग करने का नहीं, बैलेंसिंग में बोला है हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा 2,88,000 आ रहा है, चेक करो। सो वही टोटल हम यहाँ लिख देंगे 2,88,000 में से 23,200 माइनस करो 264,800। बेटा यहाँ हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन and 1/4/2014 to balance brought down 264,800 to balance brought down it will be 264,800. अरे आगे ना now but this last year is an eventful year. This last year is again eventful year. देखो मैं 1/4/14 को ये बैलेंस मैंने लिख दिया, ये दोनों के प्लस करके देखो इतने आएंगे 264,800। इन दोनों को प्लस करना सेम आंसर आएगा 264,800। लेकिन 1/4 के बाद सीधा नेक्स्ट डे 39 आ रहा है। सो 39 को हमने करा क्या? सबसे पहले 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकाला और फिर मशीन लॉस करके बेच दिया। तो पहले मेरे को बताओ मैं ये डेप्रिसिएशन कहाँ लिखूं? सो लिखो 30/9/2014 बाय डेप्रिसिएशन that is 8,000 by depreciation that is 8,000 and then machine मैंने बेटा लॉस करके बेची है। I want journal entry, raise your hand. Viraj, bank account debit, loss on sale of machine account debit to machinery account. But what's the entry? Bank account debit, loss account debit to। तो बेटा जहां मशीनरी अकाउंट बना रहे हो उसके थोड़ा नीचे लिखो, चलो वर्किंग में बैंक अकाउंट डेबिट चेक करो, देखो 72,000 आ रहे हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना है? 48,000। तो बेटा व्हाट गोज आउट? 1,20,000 की मशीन हमने बेच दी, 1,20,000 की मशीन हमने सेल ऑफ कर दी। बेटा ये मशीनरी अकाउंट में कहां, किधर? ये बाय बैंक का ने बाय लॉस मशीनरी अकाउंट में कहां जाएगा? क्रेडिट साइड ना 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 30/9/2014 बाय बैंक अकाउंट 72,000 by loss on sale of machine 48,000 by bank account 72,000 and by loss on sale of machine is 48,000. And but the last part of the working now. See the last part. 39 को हमने ये डेप्रिसिएशन निकाल के मशीन बेच दी एंड लास्ट देखो 31/3/2015 को मशीन 2 का क्या दिया हमने? मशीन 2 का क्या दिया? तो वो भी हमें इस अकाउंट में लिखना पड़ेगा। व्हाट्स द डेट? 31/3/2000। सो डेट लिख देंगे बेटा 31/3/2015 बाय depreciation
અને amount આવશે 14,400. amount આવશે બેટા 14,400. અને बेटा एवरीथिंग इज ओवर. मशीनरी का लेक्चर क्लोज करिए बेटा. चलो, हमेशा मैंने कहा डेबिट का ही टोटल ज्यादा होगा. 264 800 और उसमें से ये 4 आइटम माइनस कर दो. 122 या 122,400. इसमें से ये 4 आइटम माइनस करेंगे तो यही आएगा. And my balance carried down 122,400. My balance carried down is 122,400. But that completes the sum. 122,400. That completes the sum. इसमें वो फाइनल अकाउंट्स की इफेक्ट देने के लिए बोली, बट फॉर द फर्स्ट ईयर तो बड़ा छोटा सा P&L बना लेना, छोटा सा बैलेंस शीट बना लेना. बैलेंस शीट के असेट में ये बता देना 1,60,000 और पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है वो माइनस करके अमाउंट लिख देना बैलेंस शीट में असेट साइड. और ये जो 16,000 का डेप्रिसिएशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिख देना. छोटी सी इफेक्ट देनी है, ज्यादा हर साल का बोला. They have said to do it only for the first year. तो मशीन असेट में 160 और उसमें से डेप्रिसिएशन 16,000 माइनस कर देना. ठीक है. होमवर्क में बेटा यही सम रिपीट टेलीकास्ट. होमवर्क में बेटा यही सम रिपीट टेलीकास्ट और इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन 11 एंड इलस्ट्रेशन 12. इलस्ट्रेशन 11 एंड इलस्ट्रेशन 12.